Quickly shifting our focus to Uttar Pradesh, former SP leader and alleged former aide of Dimple Yadav, Nawab Singh Yadav, is in the custody of UP police. This after he allegedly attempted to rape a minor. Now, the police have been claiming that Nawab Yadav reportedly stripped a minor and also tried to assault her sexually. The former SP leader says it is a conspiracy by the capitalists and the police to frame him, as he has declared that he would continue to fight against this injustice, according to him. सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार दाखिली कराई जा रही है। आरोप है षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। Now, the Samajwadi Party quickly rushed to distance itself from the arrested Nawab Singh Yadav. In a letter, the district president of Samajwadi Party said Nawab was not an active party member. It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happens. Dial 112 is also dialed from there. Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test, we demand a DNA test. We also demand concrete evidence before anybody is actually accused. And if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to the book. जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है और अपने ऊपर आरोप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। Well, we have Adeep with us right now. Adeep, this is another case with regards to another Samajwadi Party leader that has now come to the fore. How exactly the party seems to be reacting to this? Because here the allegations are also very serious. And once again, we are listening to DNA and narco test to be conducted. Well, definitely, Amita, see, it's a serious allegation on one of the senior leaders of Samajwadi Party. He was the close aide of Dimple Yadav and Akhilesh Yadav. In fact, Nawab Singh Yadav was also the former representative of Dimple Yadav when she was the Kannauj MP, while she was representing Kannauj in Parliament. Nawab Singh Yadav used to represent Dimple Yadav in the Kannauj district. In fact, we are right outside Samajwadi Party office, Amita, and this is the point where the poster of Nawab Singh Yadav was at this wall till late evening, but now it has been removed, and it was a recent poster that was placed right outside the Samajwadi Party office. Till yesterday, the Samajwadi Party was saying that they have no connection with Nawab Singh Yadav. In fact, he's involved in anti-party activities for the past 5 years and he's not an active member. But his poster was right outside Samajwadi Party office. Even in Kannauj, the BJP leaders, they are saying that Nawab Singh Yadav was involved in the Samajwadi Party and when the Lok Sabha elections were going on, he was seen with Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi on his stage. In fact, several photos have surfaced in which we can see Nawab Singh Yadav on the screens as well of him appearing with Akhilesh, Dimple and behind Rahul and Akhilesh as well on the stage during the Lok Sabha campaigning. Thank you very much, Adeep, for getting us the details. In the meantime, we talk about how the BJP has now been claiming that this Nawab Yadav was allegedly not only the right-hand man of Dimple Yadav, but also was known as the mini CM of Kannauj. It claims that after distancing itself from Moeed Khan issue, the main accused in the Ayodhya rape case, the party is now trying to cover up by saying that it doesn't have any connection with this said individual.
पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी को सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के जब श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ से सांसद थी तो उसके प्रतिनिधि भी यही रहे थे। अयोध्या में अपने जो व्यक्ति 2012 में आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसका नाम जब रेप के साथ में जुड़ता है तो गैंग रेप के साथ में, तो उसके डीएनए की जांच की मांग होती है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और यहाँ के आदमी को निकाल दिया जाता है, वो अपने मुस्लिम जिलाध्यक्ष के द्वारा निकलवा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तो ये इससे ज्यादा फिर और घृणित चेहरा समाजवादी पार्टी का हो ही क्या सकता है। अखिलेश यादव परिवार के करीबी नेता एक नाबालिग लड़की का रेप करने के प्रयास में पकड़े गए हैं। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की। ये बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता है। बलात्कारियों के बचाव में उतरने वाली पार्टी है। जब 12 वर्षीय बच्ची का रेप किया गया तो अखिलेश यादव जी ने मोहित खान को निकाला नहीं। पीडीए करने वाले अखिलेश यादव जी की पार्टी ने बच्ची का डीएनए और नार्को टेस्ट की बात की। अब ये नवाब सिंह यादव तो रंगे हाथ पकड़ा गया है बलात्कार का प्रयास करते वक्त। ये वो व्यक्ति है जो डिंपल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी रहा है, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पर भी रहा है और बड़ा वर्चस्व भी रहा है। अब इसके लिए भी कहा जाएगा बच्ची से कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। अखिलेश यादव परिवार के करीबी नेता एक नाबालिग लड़की का रेप करने के प्रयास में पकड़े गए हैं। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की। ये बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता है। बलात्कारियों के बचाव में उतरने वाली पार्टी है। जब 12 वर्षीय बच्ची का रेप किया गया तो अखिलेश यादव जी ने मोहित खान को निकाला नहीं। पीडीए करने वाले अखिलेश यादव जी की पार्टी ने बच्ची का डीएनए और नार्को टेस्ट की बात की। अब ये नवाब सिंह यादव तो रंगे हाथ पकड़ा गया है बलात्कार का प्रयास करते वक्त। ये वो व्यक्ति है जो डिंपल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी रहा है, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पर भी रहा है और बड़ा वर्चस्व भी रहा है। अब इसके लिए भी कहा जाएगा बच्ची से कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। So the war of words continues between the BJP and the Samajwadi Party. We'll keep on getting you more reactions. For the moment, a quick break.